So let's start with the current affairs first. This is the 22nd May 2025, the Hindu newspaper. And the first most important news is that the top Maoist, Basav Raju, he has been killed in an operation by the security forces. So this topic is about the left-wing extremism. Left-wing extremism मतलब nexalism. अगर आपको थोड़ा सा पता हो उसके बारे में, I will take a separate class on this because you will have to differentiate between what is capitalism, what is communism, what is Marxism, what is Ambedkarism, what is feminism. So there are different political ideologies or you can say विचारधाराएं. तो नेक्सलिज्म जो है, मार्क्सिज्म जिसको हम बोलते हैं, सीपीआई मार्क्सिस्ट, तो इनकी क्या आइडियोलॉजी है, ये किस आइडियोलॉजी पे काम करते हैं, ये वायलेंस में बिलीव करते हैं. फॉर दैट वी विल नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज. So that I will not take today, but in today's newspaper, the most important news is Heart Lamp Burns Bright wins the Booker Prize for Banu and Deepa. So this is the important news because Banu Mushtaq and Deepa Bashti, they have won the International Booker Prize 2025 in London. So I will pick up this topic first. So this is the slide. And what I have done is, since it is a literary award, because ये literature की field में ये award मिलता है, International Booker Prize इसका name है. So I have covered all the literary awards in India and the important literary awards internationally also. So we will complete it once and for all because whenever we will be reading these current affairs, no, so someday, one day or another day, there will be award. भाषा सम्मान अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड, ठीक है, देन सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान. तो यू विल बी कंफ्यूज सर, देयर आर सो मैनी लिटरेरी अवार्ड्स. सो लेट अस कंप्लीट इट वंस एंड फॉर ऑल सो दैट हमारी कंफ्यूजन बिल्कुल ही क्लियर है, कोई कंफ्यूजन हो ही ना हमें. इज दैट फाइन? शैल वी स्टार्ट? सो बानू मुश्ताक विंस इंटरनेशनल बुकर प्राइज. सो शी इज बानू मुश्ताक and she is Deepa Bashti and she is the translator. Basically the book was written by Banu Mushtaq. The book name was Heart Lamp. And Karnataka writer wins prestigious international award. So Banu Mushtaq, she is a Karnataka based writer. She is an activist and she is a lawyer also. Banu Mushtaq, इनकी जो short story collection है जिसका नाम है Heart Lamp, and it was translated from Kannada to English. तो ट्रांसलेटर भी इसमें होता है. इंटरनेशनल बुकर प्राइज में there is a writer and there is a translator. So the book can be in any language. Global writers को इसमें recognition मिलती है. It can be in any language, but the only requirement is the book has to be translated in English and the book has to be published in Britain, that is UK or Ireland. This is one of the condition कि book वहाँ पर published होनी चाहिए. So by Deepa Bashti won the International Booker Prize 2025 on May 20. Mushtaq collected the prize at a ceremony. The ceremony was held at Tate Modern in London along with Deepa Bashti. The annual prize, so this prize is given annually, celebrates the best works of, please note down, long form. It is given in fictional writing or collection of short stories translated into English and published in the UK and Ireland or Ireland. So maybe it is published in UK or it is published in Ireland. And when it should be published? It should be published in that year, जिस year में इनकी book shortlist होती है. जैसे it is for 2024 and 2025 period, तो इस period के दौरान इनकी book वहाँ पर publish हुई होनी चाहिए. मुश्ताक इज द ऑथर ऑफ 6 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन. तो इन्होंने ये ऐसा नहीं है कि एक ही स्टोरी लिखी है, तो बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज इन्होंने लिखी हैं. एंड ऐसे कलेक्शन, पोएट्री कलेक्शन भी है इनके पास. शी राइट्स इन कन्नड़ एंड शी हैज़ वन मेजर अवार्ड्स फॉर हर लिटरेरी वर्क्स इंक्लूडिंग द कर्नाटका साहित्य अकेडमी अवार्ड. तो स्टेट लेवल पे भी लिटरेरी अवार्ड्स मिलते हैं, तो कर्नाटका से हैं ये, तो कर्नाटका साहित्य अकेडमी अवार्ड भी इनको मिला. दीपा बश्ती जो हैं जिन्होंने ट्रांसलेट किया है, शी इज़ अ राइटर एंड लिटरेरी ट्रांसलेटर and she is also based in Karnataka. She became the first Indian translator to win the International Booker Prize.
तो शी इज द फर्स्ट इंडियन ट्रांसलेटर. दैट मीन्स अर्लियर ऑल्सो an Indian writer, she qualified and she won the award in 2022. Her name was Gitanjali. Tom of Sand, the book was Tom of Sand. So we will see that. तो उसमें the translator was not Indian, but she has become the first Indian translator to win the International Booker Prize. इसमें 50,000 pounds की जो प्राइज मनी होती है, 25,000 pounds goes to the 25,000 pounds goes to the writer. Please close the door. Please close the door. 25,000 pounds goes to the writer and 25,000 pounds goes to the translator. One book. The Heart Lamp is the first book, and this is the first book length translation. So पूरी की पूरी बुक हो, एक शॉर्ट स्टोरी आप लिख दो, उसको ट्रांसलेट करवा के पब्लिश करवा लो, दैट इज इक्वली एलिजिबल फॉर द अवार्ड. बट दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट अ बुक लेंथ ट्रांसलेशन, पूरी की पूरी बुक को ट्रांसलेट किया गया है ऑफ मुश्ताक्स वर्क इनटू इंग्लिश. It is, and please also note down, this is the first Kannada title. Means there was no one from Karnataka who have won this award. This is the first Kannada title to win the 50,000 pounds International Booker Prize. And I was telling you that earlier also an Indian has won this award in 2022, Gitanjali Shri, and the translator was Daisy Rockwell, won the coveted prize for Hindi novel. तो ये कन्नड़ स्टोरी थी. तो उस टाइम पे किस हिंदी नॉवल, उसका नाम क्या था? टॉम ऑफ सैंड. ठीक है, टॉम ऑफ सैंड. एंड शी हैज बिकम द फर्स्ट बुक रिटन इन एन इंडियन. एंड प्लीज नोट डाउन कि गीतांजलि श्री की जो बुक थी वो पहली इंडियन बुक थी जिसको ये अवार्ड मिला था 2022 में. मींस दिस इज द सेकंड टाइम दैट एन इंडियन बुक हैज वन दिस अवार्ड. ठीक है, इंडियन लैंग्वेज में बेसिकली कन्नड़ को ही तो ट्रांसलेट किया है. तो पहले हिंदी को ट्रांसलेट किया था, तो कन्नड़ भी तो इंग्लिश की इंडिया की लैंग्वेज है. What was your question? हाँ, फिर there is no need for translator, but that this prize is only given to the global writers जिन्होंने अपने उसमें लिखी हो लैंग्वेजेस में, है ना. इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बारे में आई हैव गिवन द इंफॉर्मेशन हियर इन दिस स्लाइड. ओरिजिनली दिस टॉम ऑफ सैंड जो थी, ये जो गीतांजलि श्री की थी, दिस वॉज पब्लिश्ड इन हिंदी. पहले हिंदी में इसका नाम था रेत समाधि. ठीक है, टॉम ऑफ सैंड, रेत समाधि. द बुक इज रिटन बाय ऑथर गीतांजलि श्री एंड ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय डेजी रॉकवेल. द बुक नरेट्स द स्टोरी ऑफ 80-year-old वुमन हु एक्सपीरियंस अ डीप डिप्रेशन आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड. तो ये टॉम ऑफ सैंड की ये स्टोरी है. जो बानू मुश्ताक की स्टोरीज हैं, जो शॉर्ट कलेक्शन स्टोरीज बहुत सारी हैं, इसमें शी हैज टॉक्ड अबाउट फेमिनिज्म, शी हैज टेकन अप द वॉइस ऑफ फीमेल्स हु आर एक्सप्लॉइटेड इन द सोसाइटल सर्कमस्टांसेस. तो उसके बारे में बहुत सारी स्टोरीज हैं उन्होंने जो अपनी बुक लिखी है, हार्ट लैम्प ऑफ जो भी है. इवेंचुअली शी ओवरकम्स हर डिप्रेशन एंड डिसाइडेड टू विजिट पाकिस्तान टू फाइनली कन्फ्रंट द पास्ट एंड शी लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग द पार्टीशन. Now, this we have seen already. Now, International Booker Prize के बारे में I have given the information here. International Booker Prize is one of the most prestigious. Which award is this? Literary award, recognizing outstanding translated what? Fiction from around the world. From around the world. It was established. This award was established in 2005. The award celebrates the finest works of international authors and their translators, highlighting the richness of the global storytelling. It is the sister prize to the Booker Prize. So you will get confused. This prize is known as International Booker Prize, and there is another prize which is called as Booker Prize. So Booker Prize we also see in the further slides. Booker Prize is awarded to a novel. ये किसको मिलता है? नॉवेल को. नॉवेल रिटन इन इंग्लिश. वो इंग्लिश में ही लिखा होना चाहिए, उसको ट्रांसलेट नहीं करना. वो इंग्लिश में ही ओरिजिनली लिखा हो और वो नॉवेल हो. ये शॉर्ट स्टोरीज हैं. ठीक है. फर्स्ट इंट्रोड्यूस इंटरनेशनल बुकर प्राइज वाज फर्स्ट इन 2005. अर्लियर इट्स नेम वाज मैन बुकर प्राइज. पहले इसका नाम क्या था? मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज. द अवार्ड वाज बाइनियल. बाइनियल मींस इट वाज गिवन वंस इन 2 years. ठीक है, 2 सालों में एक बार दिया जाता है. एंड ऑनर्ड एंड ऑथर्स लाइफ टाइम बॉडी ऑफ वर्क रादर देन अ सिंगल बुक. ऑन ऑथर्स लाइफ टाइम बॉडी ऑफ वर्क रादर देन अ सिंगल बुक. तो पहले क्या होता था कि एक बुक को नहीं ये देते थे, ऑथर का पूरा लाइफ टाइम में जितना उसने लिखा है
उस सबको मिलाकर देखा जाता था कि इसकी सारी कलेक्शन जो सारा वर्क है इसका उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता था. बट इन 2015 it got changed. In 2015 only one single work is also considered for this prize. It has no restriction on the original language. So I told you कि original language कुछ भी हो सकती है. Recognizing literary giants from across the globe. Some of the notable winners of this period 2005 से लेकर 2015 का पीरियड मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि 2015 के बाद there was a change in this. इसका एक नेम भी चेंज हो गया. मैन बुकर प्राइज इंटरनेशनल प्राइज से क्या बन गया, इंटरनेशनल बुकर प्राइज. एंड जहां पर पूरी उसकी लाइफ टाइम बॉडी ऑफ वर्क को कंसिडर किया जाता था, अब एक सिंगल वर्क को भी इसमें कंसिडर किया जा सकता है. अब आपसे पूछा जा सकता है कि हु वाज द फर्स्ट विनर ऑफ इंटरनेशनल बुकर प्राइज. तो ये फर्स्ट वाला पर्सन जो है आपको याद होना चाहिए, इस्माइल कादरे. ही वाज फ्रॉम अल्बानिया. ओके, तो फर्स्ट वाले का नाम आपको याद रखना है. देन फर्दर इन 2015 द रूल्स ऑफ ओरिजिनल बुकर प्राइज एक्सपेंडेड. तो ओरिजिनल बुकर प्राइज के रूल्स चेंज हो गए 2015 में. इट एक्सपेंडेड टू अलाउ राइटर्स ऑफ एनी नेशनैलिटी टू एंटर. एनी नेशनैलिटी राइटर कैन एंटर इनटू दिस as long as their books were written in English and published in the UK. तो obviously translate करके इंग्लिश में लिखी और publish की गई हूँ. And slowly this award becomes the mirror image of English language prize. तो एक तरह का इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड बुक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज प्राइज. द प्राइज स्टार्टेड बीइंग अवॉर्डेड एनुअली फॉर अ सिंगल ट्रांसलेटेड बुक. तो पहले ये बाईएनियल था, अभी आपने ऊपर पढ़ा ये एनुअली दिया जाता है, देखा आपने. तो इट स्टार्टेड बीइंग गिवन एनुअली फॉर द, क्या लिखा है यहाँ पर, होल बॉडी ऑफ वर्क या सिंगल ट्रांसलेटेड बुक. Single translated book rather than the author's entire body of work. Since then, it has been awarded annually for a single book written in another language and translated into English. The vital work of translators is celebrated with. तो ये जो इसमें award मिलता है 50,000 pounds का मिलता है, divided equally between the author and the translator. The novels and collection of short stories are both eligible. तो novels भी eligible हैं and short story collections भी eligible हैं. Selection process and timeline क्या होता है इसका? तो basically मार्च के अंदर ये 12 to 13 बुक्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं. देन अप्रैल के अंदर ये उसको फर्दर शॉर्टलिस्ट करते हैं और 6 बुक्स का शॉर्टलिस्ट ये निकालते हैं. एंड देन मई के अंदर ये अपना विनर अनाउंस करते हैं. तो 6 बुक्स को जब शॉर्टलिस्ट किया गया था उसमें हार्ट लैम्प बुक शॉर्टलिस्टेड थी ऑब्वियसली, तभी तो ये विनर हुई है. एंड द जजिंग पैनल चेयर्ड बाय द, जजिंग पैनल कौन चेयर करता है, लिटरेरी एक्सपर्ट्स. इवैल्यूएट्स बुक्स बेस्ड ऑन लिटरेरी मेरिट, थीमेटिक डेप्थ, नैरेटिव स्टाइल एंड ट्रांसलेशन क्वालिटी. वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो अभी we will see in the further slides. So this is the timeline. We have seen that in 2005 it was established, and notable winners we have seen, transformed, current format we have seen, Booker Prize. Now comes the next prize, which is called as Booker Prize. So up till now what we have learnt, that international Booker Prize इंडिया में इंडियन वर्क्स को 2 बार रिकॉग्नाइज किया. एक बार 2022 में, वो हिंदी जो नॉवल था टॉम ऑफ सैंड, गीतांजलि श्री, रेत की समाधि, जिसमें 80-year-old वुमेन के हस्बैंड की डेथ हो गई थी, वो डिप्रेशन में चली गई एंड शी केम आउट ऑफ द डिप्रेशन, वो मिली थी. इट वाज द फर्स्ट अवार्ड गिवन टू एन इंडियन बुक. देन नाउ इन 2025 ये कन्नड़ राइटर हैं, ये भी इंडियन लैंग्वेज में इसको मिला है. इसका नाम याद रखना है, हार्ट लैम्प. और इनका नाम याद रखना है आपको, बानू मुश्ताक. और आपको ये भी याद रखना है कि करंट फॉर्मेट क्या है, ठीक है, ये याद रखना है. नाउ कम टू द बुकर प्राइज. इस बार का बुकर प्राइज जो है अभी 2024 का ही है, क्योंकि ये दिसंबर के अराउंड मिलता है, ठीक है. तो ये ब्रिटिश राइटर जो है, किनको, ऑब्वियसली आपको पता है कि ये ओरिजिनल वर्क ही किस में होना चाहिए, इंग्लिश में ही होना चाहिए. तो ब्रिटिश राइटर कौन है जिनको ये मिला इस बार, समांथा हार्वे वॉन द बुकर प्राइज 2024 फॉर फिक्शन विद ऑर्बिटल, अ शॉर्ट वंडर फिल्ड नॉवल. इनका नॉवल जो है ये अबाउट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. तो फिक्शन विद ऑर्बिटल, तो ये इन्होंने कोई लिखा होगा ये नॉवल. इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कहानी बताई कि जब साइंटिस्ट वहाँ जाते हैं तो एक दिन के अंदर उनको 16 सनसेट सनराइजेस एक दिन के अंदर देखते हैं वो. तो उसी की चीज़ के ऊपर ये नॉवल इन्होंने लिखा. अबाउट बुकर प्राइज, इट इज़ द वर्ल्ड्स लीडिंग लिटरेरी अवार्ड फॉर अ, क्या लिखा है, सिंगल वर्क ऑफ फिक्शन. तो दिस इज ऑल्सो गिवन फॉर फिक्शन. इट वॉज फाउंडेड इन यूके इन 1969. तो वो 2005 में फाउंड हुआ था, ये 1969 में. द बुकर प्राइज इनिशियली रिवॉर्डेड द कॉमनवेल्थ राइटर्स. तो पहले ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड था, कॉमनवेल्थ राइटर्स के लिए था, बट नाउ इट इज गिवन टू एनीवन अक्रॉस द ग्लोब. इट इज ओपन टू एनीवन रिगार्डलेस ऑफ द ओरिजिन.
It aims to promote the finest in the fiction by rewarding the best novel of the year written in. So please remember that this prize is given only for novels. Eligibility: the Booker Prize awards any novel originally written in English, not translated, originally written in English, and again the condition is that the novel must be published in UK and Ireland in the year of the prize, regardless of the nationality of their author. The novel must be an original work in English, not a translation. It must be published by a registered UK Irish imprint. सेल्फ पब्लिश नॉवेल्स आर नॉट एलिजिबल. इसमें भी 50,000 पाउंड मिलते हैं. एंड जो शॉर्टलिस्ट होते हैं ना नॉवेल्स, जिनको प्राइज, जो विनर तो नहीं होते बट जो शॉर्टलिस्ट होते हैं, अभी इंटरनेशनल बुकर प्राइज में भी ऐसा ही होता है. जो भी शॉर्टलिस्ट हुए उनको 2500 पाउंड तो मिलने ही मिलने ना, जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं. तो इसमें भी जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनको इतने मनी तो प्राइज मनी मिलती है, इवन दो दे आर नॉट selected or declared to be winner. The winner receives 50,000 pounds and the Booker Prize Foundation. Now you ask the question, sir, who gives the prize? है ना, कौन देता कौन है प्राइज? तो it is the Booker Prize Foundation. It is a registered charity established in 2002. Since then, it has been responsible for the award of the Man Booker Prize for fiction and for the Man Booker International Prize since its inauguration in 2005. Is that fine? So you can see that history and purpose, eligibility criteria, we have read all this. ठीक है. Now let's move ahead. Now next award is Jnanpith Award. ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड. तो इसको ना कई बार ज्ञानपीठ अवार्ड भी बोल देते हैं. ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड. तो 58th ज्ञानपीठ अवार्ड. If a question comes in the exam that which is the highest literary honor in India, अभी तक तो हमने इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड की बात करी है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लिटरेरी अवार्ड्स इन इंडिया. विच इज द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड इन इंडिया? इट इज द ज्ञानपीठ अवार्ड. लिटरेचर में सबसे हाईएस्ट अवार्ड जो है ज्ञानपीठ अवार्ड ही है. द प्रेसिडेंट कन्फर्ड द 58th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द ईयर 2023. अभी इट इज द न्यूज, इट वाज 2 days बैक दिस न्यूज वाज कवर्ड. ठीक है, it is the for the year 2023 it has been given. तो अवार्ड सेरेमनी अब हुई है. ये सिलेक्शन जो है पहले हो चुकी थी बट अवार्ड सेरेमनी अब हुई है. आई बात समझ? 2023 इवन की 59th ज्ञानपीठ अवार्ड विनर डिक्लेयर हो चुका है. 59th ज्ञानपीठ अवार्ड का विनर डिक्लेयर हो चुका है. बट अभी जो ये सेरेमनी परफॉर्म हुई है अभी 2 days बैक, इट वाज इन द न्यूज, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस कवर्ड इट. तो इसमें द प्रेसिडेंट कॉन्फर्ड दिस अवार्ड टू द विनर्स. तो यू विल बी कंफ्यूज, सर अभी ये तो 2025 में ये अवार्ड सेरेमनी चल रही है सर 58 ज्ञानपीठ अवार्ड की, एंड 59th ज्ञानपीठ अवार्ड हैज बीन ऑलरेडी बीन कन्फर्ड. कन्फर्ड मींस डिक्लेयर्ड है. कन्फर्ड अभी सेरेमनी नहीं हुई बट डिक्लेयर कर चुके हैं. अब ये किसको मिला जी 58 ज्ञानपीठ अवार्ड? ये मिला है संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु रामभद्राचार्य. इनको देखा है कभी आपने? एंड रेनाउंड पोएट लिरिसिस्ट, क्या नाम इनका? गुलजार. तो 2 लोगों को मिला है. जगत गुरु रामभद्राचार्य, ही इज अ रेवर्ड, मतलब रेवर्ड कौन होता है? जो रिस्पेक्टेड होता है बहुत ज्यादा. रेवर्ड संस्कृत स्कॉलर एंड हिंदू स्पिरिचुअल लीडर एंड हेल्ड द टाइटल ऑफ जगत गुरु रामभद्राचार्य सिंस 1982. अगर आपने वो देखा होगा, एक बार बीच में बड़ी रील वायरल हुई थी. वो एक छोटा सा बच्चा है जो मतलब ऐसे मोटा सा, थोड़ा सा हेल्दी सा, और वो माला सी डाल के और घूमता रहता है. तो एक बार एक रील वायरल हुई थी. वो ना स्टेज पे चढ़ गया, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी कुछ बोल रहे थे तो उसने पीछे से पता नहीं क्या बोल दिया, जय श्री राम पता नहीं क्या. उन्होंने बोला नीचे उतारो, नीचे उतारो उसको. कुछ रील याद है आपको? नहीं है? इनको देखा होगा फिर आपने, दिखाता हूँ. इनको देखा आपने? हाँ, विजुअली इम्पेयर्ड है ये, है ना. ही इज ब्लाइंड, विजुअली इम्पेयर्ड. तो यही है जगत गुरु रामभद्राचार्य एंड गुलजार ये है. ठीक है. तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट ही इज. अच्छा, इनको जो ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है किस लैंग्वेज में मिला होगा? कौन सी लैंग्वेज में? लिटरेरी अवार्ड है. ऑब्वियसली ही इज अ संस्कृत स्कॉलर. संस्कृत स्कॉलर है ना, तो किस में मिला होगा? संस्कृत के लिए ही मिला होगा. ही इज द फाउंडर एंड हेड ऑफ द तुलसी पीठ इन चित्रकूट मध्य प्रदेश. तो ये तुलसी पीठ के फाउंडर भी हैं एंड प्रोमिनेंट रिलीजियस लिटरेरी इंस्टीट्यूशन है ये तुलसी पीठ. ही रिसीव्ड द अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द कौन सी लैंग्वेज? संस्कृत लिटरेचर. This was the second time that the award has been given for Sanskrit. Then who was the first person to receive it? First was given to Satyavrat Shastri for his contribution to Sanskrit. So I have covered the first person also,
and he is the second person. And ये जगत गुरु राम भद्राचार्य, he is a prolific author of over 240 works. You know, we people should have inspiration because he is visually impaired and he has written more than 240 books. He has penned down 4 Sanskrit epics: Bhargava, Raghavam, Shri Ramayanam, and Dasavatara. मतलब नहीं, ये इन्होंने, I don't know. He was honored with Padma Vibhushan also in 2015. ठीक है जी, ये जगत गुरु राम भद्राचार्य याद रहेगा, वो वी विल सी, वो सिविलियन अवार्ड्स हैं वो, एंड वी विल सी द डिफरेंस. देखो, वन बाय वन आई विल बी कवरिंग एवरी अवार्ड, बट वन बाय वन. जैसे वी हैव कवर्ड टुडे द लिटरेरी अवार्ड्स, तो नाउ इन लिटरेरी अवार्ड्स यू विल नेवर बी कंफ्यूज्ड, यू विल ऑलवेज बी क्लियर. ओके, ये ज्ञानपीठ अवार्ड आ गया, अच्छा ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज आ गया, अच्छा भारतीय ये संस्कृत सरस्वती सम्मान आ गया, ये वाला. तो वन बाय वन, भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया. Then comes the Padma Vibhushan, then comes the Padma Bhushan, then comes the Padma Shri. Similarly, there are gallantry awards: Paramveer Chakra, Veer Chakra, Mahavir Chakra, Paramveer Chakra, Mahavir Chakra, then Veer Chakra, Shaurya Chakra, Kirti Chakra, and there are other awards. Peace time, war time, different awards are there. तो one by one we will pick, and इसको अगर हम साइड बाय साइड करते जाएंगे तो एकदम से जाके हमें इतने अवार्ड्स नहीं करने पड़ेंगे, हमें क्लियर रहेगा. देन गुलजार, इनका पूरा नाम है संपूर्ण सिंह कालड़ा, इज सेलिब्रेटेड उर्दू पोइट, लिरिसिस्ट, ऑथर एंड फिल्म मेकर. ही रिसीव्ड द 58th अवार्ड फॉर हिज रिमार्केबल प्राइसलेस कंट्रीब्यूशन टू विच लिटरेचर. तो याद रखना, इनको उर्दू के लिए मिला है, उनको संस्कृत के लिए मिला है. एंड दिस इज द 5th टाइम अवार्ड इज बीइंग गिवन फॉर उर्दू लिटरेचर. 5th टाइम. फर्स्ट वॉज गिवन टू फिराक गोरखपुरी in 1969. फिराक गोरखपुरी. He pioneered, Gulzar pioneered Triveni poetic form and made lasting contribution to Hindi cinema, like Maches, Andhi, Koshish. And Gulzar is also the recipient of Padma Bhushan, Sahitya Academy Award. तो साहित्य अकेडमी अवार्ड अभी हमने पढ़ा नहीं है. साहित्य अकेडमी अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, तो एन ऑस्कर. तो ये तो मिलता है आपको, ये टेलीविजन एंड मूवीज के लिए मिलता है दादा साहेब फाल्के. बट लिटरेरी अवार्ड इनको कौन सा मिला है? साहित्य अकेडमी अवार्ड. जगत गुरु राम भद्राचार्य एंड गुलजार, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो इसको हम नहीं पढ़ रहे. इनकी पिक्स मैंने आपको दिखा दी हैं. ये कौन है? ये है विनोद कुमार शुक्ला. ही इज़ द विनर ऑफ 59th ज्ञानपीठ अवार्ड एंड ही इज conferred, he has been conferred this award for his contribution to the Hindi language, Hindi literature, and he is the 8th person to be given the award for the Hindi literature. 8th. विनोद कुमार शुक्ला. विनोद कुमार शुक्ला यहाँ पर लिखा होगा, अभी आ जाएगा, डोंट वरी. ये देखो मिल गया. विनोद कुमार शुक्ला has been named the recipient of 59th Jnanpith Award 2024, becoming the first writer from Chhattisgarh to receive the honor. जैसे बानू मुश्ताक, she was the first person from Karnataka, so he similarly Jnanpith Award में he is the first writer from Chhattisgarh. This award recognizes significant contribution to the Hindi literature. First recipient of the award, अच्छा, आपको क्वेश्चन आ जाएगा, who was the first recipient of Jnanpith Award? मलयालम राइटर जी शंकरा कुरूप. ठीक है, तो जैसे हमने किया था ना इंटरनेशनल बुकर प्राइज में, वो अल्बानिया से जो पर्सन था. ठीक है, तो सिमिलरली ज्ञानपीठ अवार्ड, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव दिस अवार्ड? G. Sankara Group, who received the award in 1965 for his collection of poems Odazkul, The Bamboo Flute, published in 1950. Now let's read further. Jnanpith Award established कब हुए थे ये बताओ? 1961. First it was presented in 1965. It is India's oldest and the highest literary honor. So that I have already told you कि इंडिया में सबसे highest literary honor यही है. Conferred annually by भारतीय ज्ञानपीठ. The award recognizes outstanding contribution to Indian literature. Now please pay attention. This award is given by भारतीय ज्ञानपीठ. ठीक है, ये एक सोसाइटी है, रजिस्टर्ड सोसाइटी है. एंड ये किसको रिकॉग्नाइज करती है? आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन लिटरेचर.
across both English and various 22 Indian languages mentioned in the, तो 8th शेड्यूल के अंदर जो 22 लैंग्वेजेस हैं हमारे इंडिया में ऑफिशियल 8th शेड्यूल के अंदर, उनमें प्लस इंग्लिश ऑल्सो. इंग्लिश वॉज नॉट देयर इनिशियली. इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इन्होंने ये बाद में ऐड की है. आई थिंक इट वॉज इन 2017 के अराउंड. इंग्लिश के अंदर इन्होंने, क्योंकि ये इंडियन लिटरेचर को प्रमोट करता है ना, तो इंग्लिश वॉज नेवर अ लैंग्वेज ऑफ इंडिया, बट नाउ इंग्लिश हैज ऑलरेडी बीन ऑल्सो बीन इंक्लूडेड. एंड दिस इज एक्सक्लूसिव टू द, ये फॉरनर्स को नहीं मिल सकता, ये किसको मिलेगा? सिर्फ इंडियन सिटीजन्स. एंड नॉट पोस्टथ्यूमसली, मतलब मरण उपरांत नहीं, लाइव पर्सन को ही मिलेगा. जिसकी डेथ हो गई है उसको ये अवार्ड नहीं मिलेगा. पोस्टह्यूमसली होता है आफ्टर डेथ, एंड नॉट पोस्टह्यूमसली होता है व्हेन ही और शी इज अलाइव. देन तो डिक्लेयर ही हो गया बस. अवार्ड सेरेमनी के उनके बिहाफ पे कोई भी आ जाएगा. जैसे गुलजार अभी आए नहीं थे लेने अवार्ड, क्योंकि बिकॉज ऑफ द हेल्थ इश्यूज समवन एल्स केम ऑन हिज बिहाफ. तो एक बार अवार्ड हो गया ठीक है, बस उसके बाद डेथ हो गई तो समवन एनीवन एल्स कैन टेक. किनकी? नहीं, शी आस्क्ड द क्वेश्चन कि अगर अवार्ड एक बार अनाउंस हो गया उसके बाद डेथ हो जाए तो मैंने कहा अवार्ड तो फिर अनाउंस हो गया ना, उसके बाद तो रिसीव कोई मर्जी कर ले. जैसे गुलजार की मैंने एग्जांपल दी कि हेल्थ इश्यूज के कारण वो आ नहीं पाए थे. इंग्लिश वॉज एडेड टू द लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस एलिजिबल फॉर द अवार्ड आफ्टर द, कभी ऐड हुई है? 49th ज्ञानपीठ अवार्ड इन 2009. अमिताभ घोष बिकेम द फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज राइटर टू विन द अवार्ड. तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ज्ञानपीठ अवार्ड इंग्लिश लैंग्वेज में कभी मिला है? तो आप बोलेंगे हाँ जी मिला है, 2019 में मिला है. एंड हु इज द फर्स्ट पर्सन? अमिताभ घोष. इंग्लिश लैंग्वेज में इनको मिला है. रिसिपिएंट ऑफ द ज्ञानपीठ अवार्ड, अब वहां पर हमने देखा था 50,000 पाउंड मिलते थे, देखा था ना. अब यहाँ पर क्या मिलता है? कैश प्राइज ऑफ 11 लाख, अ स्टैच्यू ऑफ सरस्वती एंड अ साइटेशन सेलिब्रेटिंग देयर लिटरेरी एक्सीलेंस. एंड ये जो भारतीय ज्ञानपीठ, ये एक सोसाइटी, रजिस्टर्ड सोसाइटी है. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1944 बाय साहू शांति प्रसाद जैन एंड हिज वाइफ रमा जैन. एंड इट इज अ प्रेस्टिजियस लिटरेरी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्ड इन, तो ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ जो है, इट इज अ ऑर्गेनाइजेशन विच इज हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली. द अवार्ड ये हमने कर लिया ना. देन द अवार्ड रिप्रेजेंट्स द पिनेकल. पिनेकल क्या होता है? पिनेकल क्या होता है? शिखर, सबसे ऊपर शिखर. इट रिप्रेजेंट्स द पिनेकल ऑफ लिटरेरी अचीवमेंट इन इंडिया, recognizing exceptional contribution across diverse range of Indian languages, administered by Bharatiya Jnanpith. The award has evolved over time to include English after the 49th award, with Amitabh Ghosh becoming the first English language recipient in 2019. The most recent recipient, Vinod Kumar Shukla, has made history as first writer from the Chhattisgarh to receive this prestigious honor. Now, next comes the Sahitya Academy Awards 2024. साहित्य अकेडमी, अब whenever we will read the news कि साहित्य अकेडमी अवार्ड्स 2025 आ गए, तो I will only tell you the name of the winner, that's it. I will not tell you कि how it is different from other literary awards. I will not tell you when it was originated, who gave this award, ये मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको. साहित्य अकेडमी अवार्ड्स 2024 have announced 22 winners with Bengali and Urdu awards. तो 22 विनर्स डिक्लेयर किए हैं अभी तक. बंगाली और उर्दू के अवार्ड्स के अभी विनर पेंडिंग है. 22 विनर डिक्लेयर कर दिए हैं, ब्रिंगिंग द टोटल टू, तो टोटल 24 अवार्ड्स होते हैं, अभी इन्होंने 22 डिक्लेयर किए हैं. द साहित्य अकेडमी अवार्ड्स ऑनर एक्सेप्शनल लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन इन कैटेगरीज लाइक, किसमें? नॉवेल्स, पोइट्री, एसेज एंड प्लीज. नहीं, ऐसा नेम ही है. साहित्य तो मतलब होता ही है लिटरेचर. साहित्य तो लिटरेचर को ही बोलते हैं ना, हिंदी में साहित्य लिटरेचर को ही बोलते हैं. अकेडमी उन्होंने वैसे ही नाम रखा होगा. अब इट इज द, क्या लिखा है यहाँ पर? सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर इन इंडिया आफ्टर द ज्ञानपीठ अवार्ड. द ऑथर एंड पोएट्स विल रिसीव अ प्लेक, अ शॉल एंड अमाउंट ऑफ हाउ मच? 1 लाख इन an award. It was established in 1954 and as an autonomous body under the Ministry of, तो ये साहित्य अकेडमी, इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी. क्या है ये? ऑटोनोमस बॉडी. एंड दिस ऑटोनोमस बॉडी कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, बिकॉज लिटरेचर इज ऑल्सो आवर कल्चरल हेरिटेज. बोलो, कल्चरल हेरिटेज है कि नहीं? विरासत में मिलती है हमें अपने मदर फादर की प्रॉपर्टी, तो हम बोलते हैं ये हमारी हेरिटेज है. सिमिलरली
कल्चरल हेरिटेज होती है, नेचुरल हेरिटेज होती है ना, बहुत सारे हम देखते हैं ना, यूनेस्को भी हेरिटेज साइट्स को रिकॉग्नाइज करता है। तो ये जो लिटरेचर है, जो बुक्स हैं, ये भी तो हमारी कल्चरल हेरिटेज है, इसलिए इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। 20 रुपीज़, वो मैं सेंड कर दूंगा। एलिजिबिलिटी अवार्ड, ये अवार्ड कैटेगराइज करते इंक्लूड वर्क्स इन 22 लैंग्वेजेस ऑफ 8 शेड्यूल। तो ये तो हमने ज्ञानपीठ अवार्ड में भी देखा था, बोलो 22 लैंग्वेजेस वहाँ प्लस इंग्लिश, यहाँ पर भी तभी इन्होंने 22 अवार्ड डिक्लेयर करे, 22 विनर्स, मतलब जितनी भी 8 शेड्यूल के अंदर लैंग्वेजेस हैं, हर एक लैंग्वेज के लिए ये विनर डिक्लेयर करते ही करते हैं। बट टोटल 24 होते हैं। 24 कैसे हो गए टोटल, जब लैंग्वेज ही 22 हैं, 24 कैसे हो गए? तो ये 8 शेड्यूल के अंदर जो 22 लैंग्वेजेस हैं, उसके अलावा इंग्लिश एज वेल एज राजस्थानी, तो देयरफॉर टोटल बिकम्स 24। इंक्लूडेड नहीं है ना 8 शेड्यूल के अंदर। राजस्थानी एक सेपरेट लैंग्वेज कैसे हुई? वो एक वो हो सकती है, बोली हो सकती है। राजस्थानी कोई अलग वो है ना, वो क्या वो है आपकी स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट है क्या? जैसे हिंदी इज अ डिफरेंट स्क्रिप्ट, तो वो एक्सेंट अलग है, एक बोलने का स्टाइल अलग है। बट राजस्थानी, आई डोंट नो कि राजस्थानी भी अलग से है, पायल बताएगी। पायल, राजस्थानी इज अ डिफरेंट स्क्रिप्ट। चलिए, एनी हाउ, द ऑथर मस्ट बी एन इंडियन citizen. Key facts about the Sahitya Academy. It was formally inaugurated by the Government of India on 12th March 1954. It was registered as a society under the Societies Registration Act in 1860, and it is the central institution for literary dialogue, publication, promotion in the country, and only institution that undertakes literary activities in 24 Indian languages, including the English. It is an autonomous organization. It comes under the Ministry of Culture, headquartered in New Delhi. कौन सी? हाँ, देवनागरी स्क्रिप्ट देवनागरी ही है, तो हिंदी की भी देवनागरी है ना। Award recognition, prize components, this we have seen. Now next is बाल साहित्य पुरस्कार। तो अभी तक हमने कितने पढ़ लिए बताओ? इंटरनेशनल बुकर प्राइज, देन बुकर प्राइज, देन ज्ञानपीठ अवार्ड, देन साहित्य अकेडमी अवार्ड, एंड दिस इज द फिफ्थ बाल साहित्य। ये आप लोगों के लिए, आप लोग लिखो और आप लोग ये अवार्ड लो। द बाल साहित्य पुरस्कार, ऑल्सो नोन एज साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार, इट इज अ लिटरेरी ऑनर इन इंडिया। ये भी साहित्य अकेडमी ही कॉन्फर करती है, ठीक है, देती यही है। India's National Academy of Letters and annually confers on writers for their contribution in the field of children's literature in any of the 22 languages of the 8th schedule, as well as English and Rajasthani. It was instituted in 2010. It comprises a cash prize of 50. तो साहित्य अकेडमी में 1 लाख मिलता है, यहाँ पर 50,000 एंड The Bal Sahitya Puraskar, an award by Sahitya Academy for Children's Literature, recognized several authors across different languages. For the Kannada language इस बार मिला है कृष्ण मूर्ति for short story collection, उसकी स्टोरीज का नाम है ये, जो भी उनका नाम है ये, and it was awarded the Bal Sahitya Puraskar. हिंदी में मिला है देवेंद्र कुमार को, received the award for his collection on short stories 51 बाल कहानियाँ। तो मतलब कन्नड़ के लिए कृष्ण मूर्ति को मिला है इस साल, हिंदी के लिए किसको मिला है? देवेंद्र कुमार को, 51 बाल कहानियाँ। एंड मुजफ्फर हुसैन दिलबर फॉर पोएट्री फॉर हिज पोएट्री इन कश्मीरी। हर्षा सदगुरु रिसीव द अवार्ड फॉर हिज नॉवल इन कोंकणी। तो ये यू नीड नॉट रिमेंबर द नेम्स बिकॉज इसमें तो 24 है ना, तो 24 ऐसे थोड़ी अब आपको 24 याद करने पड़ेंगे। जस्ट आपको याद इंटरनेशनल बुकर प्राइज करना है, बुकर प्राइज करना है, साहित्य अकेडमी अवार्ड, वो 2 ही हैं विनर्स। तो इस बार के तो 59th वाले तो विनोद कुमार शुक्ला ही हैं, और उसके बाद ये बाल पुरस्कार तो अब 24 है, साहित्य अकेडमी अवार्ड भी कितने हैं? 24 हैं। तो वो तो हम याद नहीं कर सकते, और ना ही आई थिंक कि हमें उसमें जाना चाहिए कि हम उसको याद करने बैठे। फॉर बाल साहित्य पुरस्कार द अकेडमी हैज पिक्ड द इंग्लिश राइटर नंदनी सेनुगुप्ता फॉर हिज हिस्टोरिकल फिक्शन द ब्लू हॉर्स। तो इंग्लिश में नंदनी सेनुगुप्ता को मिला है,
एंड देवेंद्र कुमार को हिंदी के लिए मिला ही है 51 बाल कहानियाँ। बाल पुरस्कार हैज बीन अवॉर्डेड फॉर 7 नॉवेल्स। इस बार कितनों 7 नॉवेल्स, 6 पोएट्रीज, 4 स्टोरीज, 5 शॉर्ट स्टोरीज, 1 प्ले एंड 1 हिस्टोरिकल फिक्शन। तो 24 हो जाएंगे टोटल, करके देख लो चाहे। देखो 10 तो यही हो गए, 17 और 5 कितने हो गए 22 और ये क्या हो गए 23 और ये 20। ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है जी, युवा पुरस्कार। आप बाल में नहीं आओगे, आप युवा में आओगे मुझे लगता है। अंडर यंग राइटर्स अंडर द एज ऑफ 35। बाल पुरस्कार उसमें एज नहीं बताई, इसमें एज नहीं बताई, बट चिल्ड्रंस लिटरेचर पे होना चाहिए। ये जो लिटरेचर है वो क्या होनी चाहिए, कहानियाँ, है ना। और ये युवा पुरस्कार जो है ये आप कोई भी लिख सकते हो, जो नीड नॉट नेसेसरली कि भाई आप बच्चों के लिए। बच्चों ने ही लिखी हो ऑब्वियसली, और बच्चों की ही लिटरेचर हो। मे बी आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो बड़ों ने लिखी हो या बच्चों ने ही लिखी हो। बाल पुरस्कार मुझे लगता है कि शायद वो इसका नेम है ना, बाल साहित्य पुरस्कार। बाल साहित्य मतलब चिल्ड्रंस लिटरेचर। अब लिखी किसने हो इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, वी हैव टू सी इट। देन कम्स द नेक्स्ट युवा पुरस्कार। युवा पुरस्कार ऑल्सो नोन एज इट इज अ लिटरेरी ऑनर इंडिया विच ये भी साहित्य अकेडमी देती है। एंड यंग राइटर्स ऑफ आउटस्टैंडिंग वर्क्स इन वन ऑफ द 22 इंडियन मेजर लैंग्वेजेस and the writer should be under the age of 35 years. Aims of encouraging promoting young writers, it comprises a cash prize of 50,000 and engraved copper plaque. तो इस बार 23 राइटर्स को ये मिला है। ठीक है, नोटेबल राइटर्स हैं इंग्लिश राइटर के वैशाली, हिंदी ऑथर गौरव पांडे, who will receive the prestigious युवा पुरस्कार अवार्ड across many languages. Award of this year युवा पुरस्कार, तो ये 23 राइटर्स को मिला है, this we have seen. Now next come युवा पुरस्कार। अब नेक्स्ट अवार्ड कौन सा भी हमारा, भाषा सम्मान। अभी लास्ट में आपने सारा कंक्लूड करना है कि कितने अवार्ड है। नेक्स्ट इज भाषा सम्मान, ये भी साहित्य अकेडमी ही देती है। साहित्य अकेडमी पहले वो दिया, देन साहित्य अकेडमी ने दूसरा कौन सा दिया, बाल पुरस्कार, देन कौन सा दिया, युवा पुरस्कार, अब कौन सा दे रहे हैं, भाषा सम्मान। ये भाषा सम्मान पता है किसके लिए, 24 के लिए तो वो दे ही रहे हैं ना वहाँ पर। 24 के अलावा इंडिया में तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, तो बाकी की तो बच गई ना। तो 24 के अलावा जो बाकी बच गई उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए भाषा सम्मान है हमारे पास। नॉट टू यंग राइटर्स, तो मतलब वो कोई भी लिख सकता है। ठीक है। भाषा सम्मान is given by साहित्य अकेडमी to recognize contribution to languages not officially recognized by the academy। तो उन लैंग्वेजेस के लिए मिलता है जो ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। फॉर कंट्रीब्यूशन टू द क्लासिकल एंड मिडीवियल लिटरेचर द साहित्य अकेडमी इंस्टीट्यूटेड द भाषा सम्मान in 1986। In 2024 the साहित्य अकेडमी announced the भाषा सम्मान award in conjunction with the annual साहित्य अकेडमी awards which are presented annual। साहित्य अकेडमी तो 24 लैंग्वेजेस में मिलता है। भाषा सम्मान recognize contribution to languages beyond the 24 recognized by the academy। उसके अलावा जो बच गई हैं। Key aspects of the भाषा सम्मान, it promotes literary creativity and academic research in languages not officially recognized by साहित्य अकेडमी। Awardees can be writers, scholars, editors, collectors, performers, translators who have made significant contribution to the propagation, modernization, enrichment of languages। Award, the भाषा सम्मान award includes 1 lakh prize। The purpose is to promote linguistic diversity in India by extending activities beyond the 24 recognized। Linguistic diversity है इंडिया में, there are many languages। The awards are given based on the recommendation of the expert committees। Now next come which award, सरस्वती सम्मान। अब सरस्वती सम्मान ये साहित्य अकेडमी नहीं देती है, ये के बिरला फाउंडेशन देती है। के बिरला फाउंडेशन सरस्वती सम्मान एज वेल एज व्यास सम्मान। व्यास आगे है इसके नेक्स्ट वाला व्यास, तो दोनों ही के बिरला फाउंडेशन के द्वारा कॉन्फर किए जाते हैं। इट इज द प्रेस्टिजियस रिकॉग्निशन फॉर लिटरेरी एक्सीलेंस। 34th सरस्वती सम्मान फॉर 2024 वाज अवॉर्डेड टू, किसको मिला है, महमोपाध्याय साधु भादरे दास।
भाद्रेश दास, तो ये इनको मिला है। A renowned Sanskrit scholar for his book स्वामी नारायण सिद्धांता सुधा, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको क्योंकि ये न्यूज़ में था। सुधा करके इनकी कोई ये बुक है, संस्कृत स्कॉलर है, ठीक है, स्वामी नारायण सिद्धांता सुधा, इनका नाम याद रखना, महमोपाध्याय साधु, साधु और सुधा इनकी बुक का नाम है। He was chosen by a selection committee headed by, और वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि जो सरस्वती सम्मान है इसकी सिलेक्शन कमेटी कौन है जो डिसाइड करता है? प्रेजेंटली इट इज, प्रेजेंटली आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज इट इज हेडेड बाय, प्रेजेंटली इट इज हेडेड बाय फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जिनका नाम है AK सिकरी, अर्जुन कुमार सिकरी। The book published in 2022, it is a Sanskrit work. Instituted in 1991, Saraswati Samman is one of the most prestigious literary awards in the country. It is given every year to an outstanding literary work written in any Indian language by any Indian citizen. Published, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बुक कब पब्लिश हुई हो, जबकि आप याद करो इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो बुक पब्लिश हुई होनी चाहिए उसी साल के अंदर हुई होनी चाहिए, एंड ये कब पब्लिश हुए? विद इन द लास्ट 10 ईयर। इट कैरीज अ साइटेशन एंड कैश प्राइज ऑफ, तो ये सही है, KK बिरला फाउंडेशन तो साहित्य अकेडमी से भी ज़्यादा दे रही, 15 lakhs। द recipient is chosen by a selection committee whose current head is a former Supreme Court Judge Justice Arjun Kumar Sikri, former। This we have seen already. Now next come the Vyas Samman, celebrating the excellence in only in, but अब please note down, ये जो था सरस्वती सम्मान यहाँ पर लिखा है इन एनी इंडियन लैंग्वेज, ठीक है, और ये जो व्यास सम्मान है इट इज ओनली गिवन फॉर द हिंदी लिटरेचर। आई बात समझ या नहीं? तो हिंदी राइटर इस बार किसको मिला है? ये सूर्य बाला को, हिंदी राइटर सूर्य बाला को 34th व्यास सम्मान मिला है 2024 फॉर अ नॉवल कौन देश को वासी, कौन देश को वासी। बेसिकली she has covered the basically the person who migrates to different countries and face the cultural dilemmas and face discrimination in those countries, तो इन्होंने बुक उसके ऊपर लिखी है कौन देश को वासी। तो बेसिकली हम वो लोग डिप्रेशन में भी जाते हैं, वहाँ पर उनको इतनी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। Published in 2018, the novel delves into the cultural conflicts and identity struggles faced by Indian youth in America. तो सूर्य बाला, इंस्टीट्यूटेड इन 1991 बाय द KK बिरला फाउंडेशन। तो अर्ली जो हमने पहले पढ़ा है ये हमारा सरस्वती सम्मान, वहाँ पर मैंने ये वहाँ पर मेंशन नहीं था और मैंने नीचे मेंशन कर दिया है इसको। व्यास सम्मान ऑनर्स आउटस्टैंडिंग हिंदी लिटरेरी वर्क्स फ्रॉम द पास्ट डेकेड ऑफरिंग अ कैश प्राइज ऑफ 4 लाख। द सिलेक्शन कमिटी वॉज चेयर्ड बाय एमिनेंट ये प्रोफेसर रामजी तिवारी। The novel critically examined the Indian youth fascination with America as a land of opportunity, shedding light on cultural dilemmas, ideological conflicts. It portrays the spiritual and cultural detachment of overseas Indians who struggle to reconnect with their roots while failing to establish new ones. Award, the Vyas Samman is prestigious award for Hindi work, KK Birla Foundation, and 4 lakh है मिलता है। And apart from Vyas Samman, KK Birla क्या देती है? सरस्वती सम्मान, ठीक है। नाउ ये आपका क्विज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर इन इंडिया? विच लैंग्वेज इज नॉट एलिजिबल फॉर साहित्य अकेडमी अवार्ड? साहित्य अकेडमी अवार्ड के लिए कौन सी एलिजिबल नहीं है? Which of the following is not a literary award in India? Bharat Ratna. It is not. अभी पता चलेगा। What does the पद्म भूषण अवार्ड recognize? तो ये मैंने पढ़ाया नहीं अभी। पद्म भूषण, पद्म भूषण नहीं, पब्लिक सर्विस एंड इवन एक्सीलेंस इन लिटरेचर एंड आर्ट्स इसको भी रिकॉग्नाइज करता है। तो लेट मी टेल यू कि पद्म विभूषण या भारत रत्न किसी ऐसी फील्ड के लिए भी, जैसे अगर पद्म भूषण की मैं बात करूं तो वो लिटरेरी कंट्रीब्यूशन के लिए भी मिल सकता है, बट दैट डजंट मीन कि पद्म भूषण इज अ लिटरेरी अवार्ड। लिटरेरी अवार्ड तो नहीं है वो,
but it can be given in excellence in literature and arts. So now you ask me the question, sir, उसका क्या आंसर है? तो आंसर है साहित्य is given literally in 24 Indian languages, but English is not the one language eligible for this award. तो साहित्य अकेडमी में वो कौन से थे? 22 वो थे, और एक राजस्थानी थी, और क्या थी? एक इंग्लिश ही थी क्या वो? फिर ये क्वेश्चन ही गलत है, इसके ऑप्शन ही गलत हैं, शायद कुछ टाइपिंग एरर हो गया होगा। हाँ, टाइपिंग एरर हो गया होगा, टाइपिंग एरर है। नहीं, राजस्थानी के लिए तो मिल ही रहा है ना, उसमें से है ही नहीं, सारे ऑप्शंस में मिल रहा है, क्योंकि वो सारे 8 शेड्यूल में तो है ही है। संस्कृत है, हिंदी, तमिल आई एम नॉट श्योर, तमिल इज आई एम नॉट श्योर कि है कि नहीं, तमिल वैसे होनी चाहिए। 8 शेड्यूल के अंदर चेक करना पड़ेगा, 8 शेड्यूल के अंदर कितनी सारी हैं तमिल। हाँ, तमिल, इंग्लिश, वैसे मुझे लगता है ये वो है, मतलब कि टाइपिंग एरर है। तो फोर्थ का, तो यहाँ पर ये एक्सेलेंस इन लिटरेचर एंड आर्ट्स में रिकॉग्नाइज करता है ये, एंड और वेरियस फील्ड्स, बहुत सारी फील्ड, मतलब वेरियस पब्लिक इंक्लूडिंग लिटरेचर एंड आर्ट्स। तो पद्म भूषण करेंगे, वी विल अंडरस्टैंड कि किसमें मिलता है। तो विद दिस, अच्छा, फ्यू मोर पॉइंट्स, नोटेबल लिटरेरी अचीवमेंट्स। द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव भारत रत्न फॉर द कंट्रीब्यूशन इन लिटरेचर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इन 1950। तो भारत रत्न लिटरेरी कंट्रीब्यूशन के लिए किसको मिला था? एंड नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए, नोबेल प्राइज अलग होते हैं, है ना, नोबेल पीस प्राइज, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, और ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस मिलता है ना। तो रविंद्रनाथ टैगोर was the first person of Indian origin and also the first Asian to be awarded with the Nobel Prize. He received the prize for literature in 1913.